Okay, introduction completed, the discovery of Hampi completed, Rayas, Naikas and Sultans completed, the kings and traders completed, the apogee and decline of the empire completed, the Rayas and the Naikas detailing completed, introduction with major innovation in the empire related to them, especially to the Naikas. Vijayanagar, the capital and its environs started, and after that completed also. First point was water resources. Second was fortifications and roads. Third was reference for Abdul Razak and Pais. After that, third was fort detail. Fourth was the urban core. Now, the fifth topic was the royal center, its location, palaces, note. Module completed. Then after that, coming on to module 2, the Mahanavami Dibba, containing the king's palace. The king's palace containing the two important platforms. One was the audience hall and second was the Mahanavami Dibba. Audience hall explained. Mahanavami Dibba also explained. Along with the ceremonies which used to be conducted in Mahanavami Dibba, yani ki we also discussed the significance of Mahanavami Dibba. Now coming on to the fact check. महानवमी डिब्बा के बारे में पूरी स्टडी करने के बाद अब हम फैक्ट चेक में आते हैं. कमिंग ऑन टू फैक्ट एनालिसिस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल यस्टरडे अबाउट महानवमी डिब्बा. The question which arises is, the space surrounding the above defined structure was supposedly not adequate for such grand and elaborated processions of armed men, women, and a large number of animals. Thereby, like other structures in royal structure, it also remains in enigma, difficult to understand. But देखिए, theoretically, the existence, the significance, and the virulence of Mahanavami Dibba was explained by historians on a common scale. Secondly, second most important thing, nearby all the historians explained the importance and significance of Mahanavami Dibba nearby on the same point, that Mahanavami Dibba was especially made for the ceremonies to be conducted by the Nayakas for the Rayas, yani ki for the rule. But technically, logically, many philosophists, many philanthropists, and many technicalists raised the questions above the existence of Mahanavami Dibba. अब आप कहोगे सर व्हाट वाज द क्वेश्चन एक्चुअली बीइंग रेज्ड अबव या अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ महानवमी डिब्बा. द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल. क्वेश्चन क्या था? सिंपल ये था कि भाई इतनी बड़ी इतने बड़े लेवल की ग्रैंड और इतने बड़े लेवल के इलेबोरेटेड प्रोसेशंस कंडक्ट किए जाते थे. कहाँ पे? महानवमी डिब्बा में, जहां पर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती थी जिसमें फौजी, हाथी, घोड़े, बच्चे, औरतें, वो भी बड़ी क्वांटिटी पार्टिसिपेट करते थे. तो जिस हिसाब से बताया जा रहा है that such grand and elaborated processions and ceremonies used to be conducted in the Mahanavami Dibba, according to the size and orientation of such processions, महानवमी डिब्बा का जो स्पेस अवेलेबिलिटी डिफाइन किया गया है वो स्पेस तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं. इट वाज नॉट सफिशिएंट, इट वाज नॉट सपोजिटली एडिक्वेट. तो इसका मतलब महानवमी डिब्बा के बारे में जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बुक दे रही है और लॉजिकली जो इसके पैरामीटर्स पर रिसर्च हुई है, उन दोनों में काफी डिफरेंस. इसीलिए व्हाट द एक्सप्लेनेशन हैज बीन गिवन अबाउट महानवमी डिब्बा इन द अबव कंटेक्स्ट व्हिच वी स्टडीड यस्टरडे, वो अभी तक एक कंफ्यूजन में ही है. डिटेल है, ठीक है, पढ़ो, बट हैंस प्रूव्ड उसके आगे नहीं लगा है. व्हाई? बिकॉज वो चीज समझने में बड़ी मुश्किल लगती है. दैट्स व्हाई उसको अभी तक हम हैंस प्रूव्ड नहीं मानते. That's why the existence and significance of Mahanavami Dibba as explained in the book has always been in enigma and still remains in enigma. Enigma का मतलब होता है difficult to understand, confusion. ये खत्म हुआ. After the audience hall and Mahanavami Dibba, coming on to some other important buildings in the Royal Center. And obviously the discussion of audience hall and the Mahanavami Dibba which we were talking about, they were also the part of royal residence, not royal residence नहीं, मतलब King's Palace, and King's Palace was in the Royal Center. तो रॉयल सेंटर के अंदर इन दोनों ऊपर की बिल्डिंग्स के अलावा और कौन सी बिल्डिंग्स थी उस पर हम थोड़ा सा अपनी नजर डालते हैं. फर्स्ट वाज लोटस महल. व्हाट वाज लोटस महल?
name given by the British travelers in the 19th century. Lotus Mahal was the actually building, infrastructure, a kind of infrastructure which was actually named by the British travelers in the 19th century. लोटस महल को लोटस महल नाम ही किन्होंने दिया था? नाम ही लोटस है, इंग्लिश नेम, तो ऑब्वियसली नाम किन्होंने दिया था? ब्रिटिश ट्रैवलर्स, 19th सेंचुरी. सेकंड, डिफरेंट परसेप्शंस रिलेटेड टू द अबव. अब लोटस महल के लिए कुछ परसेप्शंस पर हम आते हैं. एक मैकेंजी साहब थे, शायद आपने सुना हो. मैकेंजी वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर. इट मे हैव बीन अ काउंसिल चैम्बर, अ प्लेस ऑफ मीटिंग फॉर द किंग एंड हिज एडवाइजर. अब उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है इसके बारे में? भाई ठीक है, लोटस महल ठीक है, इट हैज बीन गिवन, मतलब द नेम वाज गिवन बाय द ब्रिटिश इटसेल्फ, ये ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट या ब्रिटिश ट्रैवलर्स इन द 19th सेंचुरी, यानी कि वो ट्रैवलर्स जो ब्रिटिश से इंडिया आते थे यात्रा करने के लिए और इंडिया में आके रिसर्च करते थे, उन ट्रैवलर्स ने 19th सेंचुरी में लोटस महल को लोटस महल नाम दिया. ठीक है. सेकंड पॉइंट, अब लोटस महल के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शंस थे. फर्स्ट वाज अबाउट मैकेंजी. बात करते हैं मैकेंजी साहब ने क्या कहा. मैकेंजी वही जिन्होंने विजयनगर के बारे में बात की थी सबसे पहले, हु वाज एन इंजीनियर ऑल्सो. तो मैकेंजी साहब ने ये कहा कि भाई लोटस महल जहां तक आइडिया है वो एक काउंसिल चैम्बर हो सकता है. काउंसिल चैम्बर समझते हैं आप? बैठक टाइप, बड़ी सी बैठक. बैठक हमारे टाइप नहीं भाई, ये तो बैठक नहीं है, तो छोड़ो, उनका एक कुर्सी की जगह भी नहीं होती. मतलब मैकेंजी एक्सप्लेन लोटस महल दैट लोटस महल मे हैव बीन अ काउंसिल चैम्बर, कि लोटस महल शायद कभी कोई बैठक का रूप होगा या बैठक के रूप का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहां पर शायद राजा और उसके एडवाइजर्स मिलते होंगे, यानी कि राजा और उसके सलाहकार, सिपह सलाहकार वहां पर मिलते होंगे. अब आप कहोगे ठीक है, मैकेंजी साहब ने तो ये समझा दिया लोटस महल के बारे में, यानी कि उन्होंने वहां पर सस्पिशन रखा, एक्सप्लेन कंप्लीटली नहीं किया. उन्होंने कहा कि लगता है ऐसा होगा, पक्का नहीं कह सकते. अदर हिस्टोरियंस नॉट श्योर ऑफ द अबव, और दूसरे हिस्टोरियंस तो ऊपर की बात से भी श्योर नहीं है. यानी कि वन एजम्पशन वाज गिवन बाय मैकेंजी अबाउट द लोटस महल, उसके अलावा किसी ने एजम्पशन भी नहीं दिया. एंड डिस्पाइट ऑफ दैट वन एजम्पशन, अदर हिस्टोरियंस क्लियरली सेड दैट कि हम तो इस पर्टिकुलर वन एजम्पशन के भी श्योर नहीं कह सकते. वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस वन एजम्पशन. नोट द नेम लुक्ड सर्टेनली रोमांटिक. व्हाई? बिकॉज द हिस्टोरियंस गेव एन एविडेंस ऑफ देयर टॉक. उनका ये कहना था कि उस वक्त जो नाम रखे जाते थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो कंप्लीटली किसी चीज की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए ध्यान में रखे जाते थे. तो आई थिंक इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम ऑफ द लोटस महल दैट इट वाज लुकिंग रोमांटिक इन इट्स नेम. अब नाम में इतना रोमांटिक, और वहां पर कह रहे हो आप कि वहां पर पॉलिटिकल मीटिंग्स होती होंगी राजा की, उसके एडवाइजर्स की, ये सूट नहीं करता. दैट्स व्हाई हिस्टोरियंस वर क्वाइट सस्पिशियस अबाउट द designation and about the type of infrastructure what Lotus Mahal was या would have been. लोटस महल के अलावा कुछ और टेम्पल्स पे बात कर लेते हैं. सेवरल इन रॉयल सेंटर एंड अदर मोस्ट इन द सेक्रेड सेंटर. अब लोटस टेम्पल के अलावा और भी कई मंदिर थे, उनमें कई मंदिर रॉयल सेंटर में थे और कई मंदिर उसके भी अंदर डीप में जाके सेक्रेड सेंटर में थे. सेक्रेड का सेंटर का तो काम ही ये था कि वहां पर तो सारा स्थल ही पूजा सामग्री से जुड़ा हुआ था, यानी कि इट वाज कंप्लीटली रिलेटेड टू द वर्शिपिंग ऑफ गॉड. तो रॉयल सेंटर में काफी टेम्पल्स थे, और उन काफी टेम्पल्स में भी रॉयल सेंटर के अंदर जो सेक्रेड सेंटर पड़ता था, स्पेशली मेड फॉर द पर्पस, वहां पर सबसे ज्यादा टेम्पल्स थे. आप कहोगे इफ वी टेक एन वन और टू एग्जांपल देन इट विल बी वेरी एफिशिएंट. सर ले लेते हैं. लाइक एग्जांपल वन लेते हैं, द हजारा राम टेम्पल यूज्ड बाय द किंग फैमिली. ये वो मंदिर था जहां पर राजा और महाराजा और राजा के परिवार के लोग ही जा सकते थे, यानी कि नो अदर एंटिटी belonging to the kingdom, belonging to the empire or in the royal center was allowed to visit this temple. This temple was only made for the king and his family. आप कहोगे इसके एविडेंसेस, काइंडली गिव अस सम एविडेंसेस टू प्रूव दिस फैक्ट. पहली बात, images related to the central shrine missing. अब इस टेम्पल के एविडेंसेस क्या हैं जो आप कह रहे हो? मतलब यू कैन से टू मी सर यू हैव गिवन अ रेफरेंस ऑफ द हजारा राम टेम्पल. आपने बताई दैट ठीक है, दिस वाज द टेम्पल व्हिच वाज बीइंग मोस्टली यूज्ड बाय द किंग एंड हिज फैमिली. मोस्टली का मतलब इट वाज ओनली यूज्ड बाय द किंग एंड हिज फैमिली. मैं कहूंगा ओके, नाउ काइंडली टॉक अबाउट द एविडेंसेस. हमें उन एविडेंसेस के बारे में बताइए जो ये बताते हो कि हजारा राम टेम्पल एग्जिस्ट करता था. तो पहला एविडेंस,
हजारा राम टेम्पल के बीच में जो सेंट्रल श्राइन, मतलब उनका जो सेंट्रल, जिस पूरे मठ के इधर उधर पूरा मंदिर बना रखा था उन्होंने, वो पूरा मठ ही गायब। और उसी के बारे में एक्सकवेशन में पता चला, जिससे आइडिया लगा कि यहाँ पे कोई मंदिर होगा और उस मंदिर के बीच में कहीं पर यहाँ पर इसका सेंट्रल श्राइन होगा जो आज मिसिंग। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जज करते हैं ना सर्वे वाले। सेकंड पॉइंट, सम पैनल्स स्कल्प्टेड ऑन द वॉल्स सर्वाइव सच एज। दूसरी बात, कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वेस के पैनल्स ने जब रिसर्च की और रिसर्च करके पूरे टेम्पल को स्टडी किया, तो उस टेम्पल की जो वॉल्स थी, उन वॉल्स पर उन्होंने कई अलग अलग तरह की सीनरीज देखी। स्पेशली पूरे मंदिर के अंदर जहां पर सेंट्रल पोजीशन पे पूरा मठ था श्री राम का, मूर्ति वूर्ति जो भी थी, उसके इधर उधर जितनी भी इनर वॉल्स थी उसकी, उन इनर वॉल्स पे रामायणा की पिक्चर्स बनी हुई, यानी कि scenes from the Ramayana were being engraved onto the inner walls of the central shrine of the हजारा राम टेम्पल। जिससे ये आइडिया लगा कि ये हजारा राम टेम्पल होगा, यानी कि राम का मंदिर होगा। कंप्लीट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, द सेक्रेड सेंटर। अभी तक हम रॉयल सेंटर के बारे में बात कर रहे थे, वेयर वी टॉक्ड अबाउट द टू बेसिक प्लेटफॉर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट one was the audience hall, second was the Mahanambi Dibba. Leaving them, other building and infrastructures we also discussed about. First was Lotus Mahal. There were many other temples also, in which also we discussed one, that was Hazara Ram temple with its evidences related. Now coming on to the sacred center. अब आते हैं sacred center, जहां पर हमने बात की थी कि there were many temples present in the royal center, in which most of the temples were present in the sacred center. तो सबसे पहली बात, पॉइंट ए, चूजिंग अ कैपिटल। अब इस सेक्रेड सेंटर की ट्रेडिशनल लेगेसी को हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो परंपरागत रूप से इसका जो पीछे का इतिहास है वो क्या कहता है या कैसा चला आ रहा था। नोट, एज पर मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड रॉकी टेरेन ऑन द बैंक्स ऑफ द तुंगाभद्रा ऑफ द सिटी। देखिए, शहर के उस हिस्से में या उस भाग में आज तक सेक्रेड सेंटर को माना जाता था या सेक्रेड सेंटर पड़ता था, जाता है कि ऊपर की जिन रॉकी टेरेन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिन हिल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं या तुंगाभद्रा नदी के किनारे पर बसे हुए इस पूरे पर्टिकुलर जोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि कभी यहीं पर कभी यहीं पर बलि और सुग्रीव, बलि नहीं मतलब वाली, जिसको हम बाली भी कहते थे, राजा बाली और राजा सुग्रीव के साम्राज्य हुआ करते थे। अब आप कहोगे हु इज राजा बाली एंड राजा सुग्रीव, तो आई थिंक ये आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा इन लॉकडाउन पीरियड। इफ यू हैव सीन रामायण तो आपको पता लगेगा दैट रामायण के अंदर दो कैरेक्टर्स थे जिनका नाम था बाली और सुग्रीव, एंड बोथ दीज कैरेक्टर्स वर एक्चुअली रियल ब्रदर्स, एंड बोथ दीज ब्रदर्स बिलोंग्ड टू मॉन्की किंगडम। उनके अपने अपने मॉन्की किंगडम थे। हनुमान जी सुग्रीव की टीम में, जिसमें कि बलि को यानी कि बाली को श्री राम ने आई थिंक आप कह सकते हैं कि उनका वध किया था या उनको डेथ प्रूफ दिया था फॉर द सेक ऑफ सुग्रीव, जो उन्होंने सुग्रीव के साथ गलत किया था। ध्यान करेंगे आ जाएगा। तो ये कहा जाता है कि इन्हीं पहाड़ियों में कभी सुग्रीव और राजा बाली के साम्राज्य हुआ करते थे, जहां श्री राम जी सुग्रीव और बाली से मिले होंगे। Next point, Pampa Devi, the local goddess did place in these hills to marry the Virupaksha, a form of Shiva, guardian deity of the kingdom. और ये भी माना जाता है कि जिस पंपा देवी के नाम पर इस पूरे के पूरे साइट का ही नाम दोबारा पड़ा या रीइन्वेंट किया गया विजयनगर को एज अ हम्पी, वो पंपा देवी जो वहां की लोकल गॉडेस मानी जाती थी, ये माना जाता है कि इन्हीं पहाड़ियों में उन पंपा देवी ने भी अपनी तपस्या इन्हीं पहाड़ियों में की होगी। क्यों की होगी तपस्या, क्यों की होगी पंपा देवी जी ने? जिससे कि उनको अपने मन का वर मिले। और मन का वर कौन था उनके? वीरूपक्षा। और वीरूपक्षा कौन थे? शिव जी का अवतार या शिव जी का एक रूप।
जिसको ये माना जाता है कि उस पूरे किंगडम के वो गार्डियन डाइटी है। यानी कि देखिए उस पूरे किंगडम की लोकल डाइटी किसको माना जाता था? पंपा देवी जी को। और उस पूरे किंगडम का गार्ड किसको माना जाता था, यानी कि गार्डियन डाइटी किसको माना जाता था? विरूपाक्षा। यानी कि पंपा देवी जी ने यहीं पर कहीं पहाड़ियों में तपस्या की, मतलब तपस्या की होगी अपने पति या मन के वर को पाने के लिए, जिनका नाम था विरूपाक्षा, हु वाज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ शिवा। अंडरस्टूड? ये बेसिक थ्योरी है, लेगेसी है जो चली आ रही है वहां। नाउ कमिंग ऑन टू फैक्ट चेक। अब ये लेगेसी कितनी एग्जिस्ट करती है वहां पर, या करती थी वहां पर, देखते हैं। फैक्ट चेक। देयर मैरिज इज सेलिब्रेटेड टिल टुडे एनुअली। आज भी हर साल विरूपाक्षा और पंपा देवी जी की शादी वहां पर सेलिब्रेट की जाती है उस जोन में, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तुंगभद्रा इन द नॉर्दर्न टेरेन ऑफ द विजयनगर एम्पायर व्हिच वाज यूज्ड टू बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस जो रॉकी है पूरा। आज भी ये शादी वहां सेलिब्रेट होती है। सेकंड पॉइंट, जैन टेम्पल्स ऑफ प्री विजयनगर एम्पायर आल्सो फाउंड इन दीज। साथ में ये भी कहा जाता है कि जैन मुनियों ने भी इन पहाड़ियों में तपस्या की होगी। ऑन व्हाट बेसिस ये कहा जाता है? वो इस बेसिस पे कहा जाता है कि एक्सकेवेशंस करते वक्त ये पता चला कि विजयनगर एम्पायर के शुरू होने से पहले यहाँ पर कुछ और रूइंस मिले हैं जो जैन टेम्पल्स के, जो जैन इंफ्रास्ट्रक्चर या जैन आर्किटेक्चर को सिग्निफाई करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यानी कि ऑन दिस बेसिस वी कैन आल्सो से दैट जैन टेम्पल्स ऑफ प्री विजयनगर एम्पायर वर आल्सो फाउंड इन दीज हिल्स। नाउ टेम्पल्स, बिल्डिंग एंड फीचर्स रिलेटेड। सबसे बड़ी बात, जो टेम्पल्स इस किंगडम में बनाए गए उनको सबसे ज्यादा एनकरेजमेंट किसने दिया? लेट्स सी। encouraged by many rulers related to different dynasties such as, देखिए सब हिंदू किंगडम्स थे, and these Hindu kingdoms, the rulers belonging to these Hindu kingdoms were actually very passionate towards their religious propagation. That's why लगभग जो भी किंगडम विजयनगर में आया, चाहे कभी भी आया, चाहे किसी भी एरा में आया, ठीक है, उन्होंने अपने अपने टाइम पर आकर यहाँ पर टेम्पल बिल्डिंग को प्रमोट किया, प्रोपेगेट किया और उसको इंट्रिकेट एंड डेवलप किया। चाहे फिर वो पल्लवा वंश के राजा हों, चाहे वो चालुक्य डायनेस्टी के राजा हों, चाहे वो होयसाला डायनेस्टी के राजा हों, चाहे वो चोला वंश के राजा हों। अंडरस्टूड? सभी ने who associated themselves with the divine, therefore explicitly or implicitly identified with the deity of the temple. इन सभी किंगडम्स के राजाओं की एक खास प्रवृत्ति यानी कि नेचर यानी कि क्वालिटी। व्हाट वाज द क्वालिटी? देयर एक्चुअल क्वालिटी वाज दैट दे वर डिवाइन बाय देयर हार्ट एंड देयर सोल। Therefore, when they used to perceive their kingdom, when they used to activate themselves as the king or the ruler for their kingdom, they used to activate that thing very divinely. वो अपने आप को भगवान का मैसेंजर मानते थे। वो अपने आप को ये नहीं मानते थे कि मैं राजा बन गया हूं तो मैं सबका बाप बन गया। नो, दे यूज्ड टू कंसिडर देम विथ कंप्लीट प्योर एंड डिवाइन सोल। देयरफॉर चाहे वो एक्सप्लिसिटली की बात करें, चाहे इम्प्लिसिटली की बात करें, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, वो हर तरफ से ये मानते थे कि इस मंदिर के जो देवता हैं, यानी कि जो मंदिर है हमारे, जिस मंदिर को हमें बनाने का कार्य दिया गया है, उस मंदिर के जो देव हैं यानी कि देवता हैं, ये कार्य उन्होंने हमें दिया है, हम कोई नहीं होते बनाने वाले। यानी कि ऑब्वियसली इफ समबडी इज कंस्ट्रक्टिंग और बिल्डिंग समथिंग, और अगर उसके पीछे उसकी सोच ये हो कि ये करने वाले हम कोई नहीं है तो भगवान हमसे करा रहा है, तो आई थिंक आप समझ सकते हैं दैट आई थिंक दैट पर्सन इज डिवाइन बाय हार्ट, और किसी अच्छे पर्पस के लिए वो बिल्ड बिल्ड कर रहा है वो चीज। ठीक है, तो इसीलिए उन रूलर्स की खास बात मानी जाती है, इसीलिए उन्होंने इसी सोच को ध्यान में रखते हुए मंदिर पे मंदिर बनवाए और बहुत सारे बनवाए। ठीक है, तो आई थिंक फॉर टुडे इट्स मोर देन एनफ। रेस्ट वी विल टॉक टुमारो, एंड आई थिंक